some more questions of exercise 3.6. Question number second of second exercise 3.6. 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. See here, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 वुमेन है, 5 मेन है, एक साथ मिलके एक कलाकारी का जो काम होता है ना, एम्ब्रॉयडरी वर्क का मतलब है डिजाइनिंग बनाया जो जाता है कपड़े पर, उसको एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, 4 दिन में करते हैं। फिर सेकंड कंडीशन दिया हुआ है, बेटे ऑफ योर माइक, तो वी नीड टू फाइंड कि एलोन मीन्स अकेले अकेले एक वुमेन और एक मेन कितने दिन में इस काम को करेगा। तो विल लेट 1 woman let 1 woman can do the work alone in X days and 1 man can do the work alone in Y days. See here, I have taken कि 1 woman can do the work alone in X days and 1 man can do the work in Y days. So in X days, 1 woman is doing 1 work. So in X days, work done by 1 woman will be equal to, see students, यहां देखो, in X days work done by 1 woman is 1. So in 1 day, therefore in 1 day work done by 1 woman will be how much? 1 by X. X days में एक वुमेन एक वर्क करती है, तो 1 डे में, एक दिन में कितना काम करेगी? 1 by X. Similarly, 1 day work of 1 man will be how much? See here, in Y days, 1 man is doing 1 work. So in 1 day, how much work he will do? 1 by Y. दोनों का हमने 1 डे का वर्क लिख लिया. Now in condition number first, according to condition first, see here, in first case there are 2 women and 5 men. तो ये देखो, ये 1 वुमेन का एक दिन का काम है, तो 2 वुमेन का काम क्या होगा? 2 into 1 by X plus, secondly, it is work of 1 man. So how much work of 5 men? 5 into 1 upon Y. In first case there are 2 women, तो ये एक वुमेन का काम है, तो 2 वुमेन है, तो ये 2 वुमेन का काम हो गया एक दिन का, और ये एक दिन का एक मैन का काम है, तो 5 डेज का क्या हो जाएगा? 5 into 1 by Y. और ये दोनों वर्क जो है एक दिन का है. This both the works are combined. So this is the work of 1 day of 1 woman and 1 man. But here it is given that कि both can do a work together in 4 days. 4 days में एक काम करेंगे, तो एक दिन में दोनों मिलके कितना करेंगे वर्क? 1/4. See here, ये देखो, ये 1/4 कैसे हुआ? 2 women and 5 men एक साथ मिलके कितना काम कर रहे हैं? कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में. तो
एक दिन में कितना काम करेगा 1/4। अब इसको हम लोग इक्वेशन बना लें तो इट विल बिकम 2/x प्लस 5/y is equals to 1/4. This is equation number first. सर आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। किसे आवाज नहीं आ रही है? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब बताओ आवाज आ रही है? हेलो हेलो। यस सर। ओके। इन सेकेंड कंडीशन सी हियर। हेलो सर, सर आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो, अब आ रही आवाज? हेलो, आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir. यस सर। Okay, see, in second condition, सर आवाज नहीं आ रहा है। in second condition, in सर ऊपर second, वाला नहीं आवाज समझ नहीं में आ आया। सर आपकी आवाज कट रही थी इसलिए ऊपर वाला नहीं समझ में आया। see here, यहाँ क्या हो रहा है कि X डेज में एक वुमेन एक दिन में एक काम को X डेज में कर रही है। See here, मैं बता रहा हूँ, once again I am repeating. I have taken here कि one woman can do one work alone in X days. X days में एक काम कर रही है एक महिला, तो एक दिन में कितना काम करेगी? 1/x. सिमिलरली वन डे वर्क ऑफ वन मैन क्या हो जाएगा? 1/y. एक दिन का काम दोनों का क्या होगा? अगर एक दिन में उस काम को एक महिला कर रही है तो एक दिन में कितना काम करेगी? 1/x. सर और आवाज एक नहीं सुनाई दे रहा है। हेलो सर, हेलो, सर तुम आवाज लोग नहीं सुनाई दे रहा है। तुम लोगों की आवाज मुझे आ रही है। हेलो आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। हेलो, सर बहुत धीरे आ आवाज रही है। नहीं सुनाई दे रहा है। आवाज नहीं सुनाई पड़ रहा है, but students, your sound is coming here clearly to me, but maybe some technical problem, I don't know. I am trying to. Yes sir, we can also hear you. Then what is the problem? Some students are not listening me clearly. It means there is some network problem. See here, the one day work of one man is 1/y and one day work of one woman is 1/x. Here two women are given, so two women's work will be what? For one day 2 into 1/x and 5 men's work for one day will be 5 into 1/y. ये देखो, ये दो महिलाओं का एक दिन का काम है, ये 5 मैन का एक दिन का काम है, और ये दिया हुआ है कि 4 दिन में वो एक काम को करते हैं, तो ये 1/4 होगा। माइक ऑफ कर लो सभी लोग, माइक को बंद रखो। तो यहां से हमें ये इक्वेशन मिल गया, पहला इक्वेशन। In second equation, similarly, how many men and women are there? 3 women and 6 men. So 3 women's work will be 3 into 1/x plus 6 into 1/y. ये एक दिन का काम हुआ दोनों का, और यहाँ गिवन है कि वो दोनों मिलके 3 दिन में उस काम को पूरा करते हैं। 3 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना काम? 1/3. Again, we get 3/x plus 6/y will be equals to 1/3. This is equation number second. Now solve equation first and second. You So get the value 1/3 1/3। इसलिए देखो, ये एक दिन का काम है वुमेन का, ये एक दिन का काम है मेन का, ये दोनों मिला के एक दिन का वर्क हुआ, 1 डे वर्क। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 डेज में वो एक काम को करते हैं, दोनों पुरुष और महिलाएं मिलके 3 दिन में एक काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/3। ये यूनिटरी मेथड में तुम्हें पढ़ाया गया, यूनिटरी मेथड में, कि जब भी अगर बहुत सारे दिनों में कोई काम करता है तो एक दिन का निकालना होगा, तो क्या करेंगे? इट विल बिकम 1/3। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सॉल्व दिस टू इक्वेशंस। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड दैट विल बी द आंसर। अंडरस्टूड? माइक ऑफ करो सभी लोग।
माइक ऑफ करना है। कुछ लोगों के माइक्स ऑन है। ओके, तो इसको देखो, फिर से एक बार समझो, फिर से एक बार समझो। वंस अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। इसमें कह रहा है कि एक काम है जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों मिलके काम कर रहे हैं। पहले केस में कह रहा है कि 2 वुमेन हैं और 5 मेन हैं, दोनों मिलके एक काम को 4 डेज में कर दे रहे हैं। सेकेंड केस में क्या है? इन सेकेंड कंडीशन 3 वुमेन एंड 6 मेन कैन डू अ वर्क इन 3 डेज। इतने लोग मिलके 3 डेज में कर रहे हैं। हमें फाइंड करना है कि अगर अकेले अकेले उनको ये काम दे दिया जाए। हेलो, थोड़ा नेटवर्क में आओ, आवाज आएगी। अगर वो अकेले अकेले इस काम को शुरू करे तो कितने दिन में पूरा करेंगे? एक महिला, एक वुमेन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी, और एक मैन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? हमने यहां ले लिया कि 1 वुमेन कैन डू दी वर्क अलोन इन X डेज एंड 1 मैन कैन डू दी वर्क इन Y डेज। तो X डेज में एक वुमेन एक वर्क करती है, तो X days में work done by 1 woman is 1. So in 1 day, work done by 1 woman will be what? 1 by X. Similarly, 1 day work of 1 man is 1 by Y. After multiplying the number of women to work done in 1 day, we get this equation. पहला इक्वेशन ये मिला, दूसरा इक्वेशन ये मिला, दोनों को सॉल्व करो। Solve these 2 equations. After solving, you get the value of X and Y. That will be the answer. वही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा। Solve it quickly. Note it down. Now, students, question number 3rd. In question number 3, Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. It is given that a girl traveling a distance of 300 kilometers, she is traveling some distance by train and some distance by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and the remaining by bus. And if she travels 100 kilometers by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. So we let the speed of bus and train be X kilometer per hour and Y kilometer per hour respectively. Let the speed of bus and train be X kilometer per hour and Y kilometer per hour respectively. See here,
Here I have written bus first. It means x kilometer per hour is the speed of bus and y kilometer per hour is the speed of train. In first condition, it is given that if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus, there will be 4 hours time. 300 किलोमीटर में वह 60 किलोमीटर को वह ट्रेन से ट्रेवल करती है और बाकी बस से दूरी तय करती है. तो इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो व्हाट विल बी रिमेनिंग डिस्टेंस? हेलो, अगर 60 किलोमीटर वो बस से ट्रेवल करे ट्रेन से, तो कितना बच जाएगा डिस्टेंस 300 में से? तो हियर टोटल डिस्टेंस इज 250. टोटल डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर. और एक फार्मूला हमें मालूम है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू स्पीड इनटू टाइम. तो इन फर्स्ट केस, सी हियर, in first condition, what is the condition first? Now if you take condition first, so from here time is given, so time will be equal to what? See here, time will be equal to distance upon speed, distance upon speed. So in first case, she is traveling 60 kilometer by train. Find the speed of train and bus. Train is written first. तो अगर हम ट्रेन को वहां फर्स्ट कर दें, थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दिया जाए, ट्रेन को पहले लिख दिया जाए, बस को बाद में लिख दिया जाए. लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस. अगर हम बस का पहले लेंगे तो थोड़ा सब जगह डिस्टर्ब करेगा. सी यार 60 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, किससे? ट्रेन से. ट्रेन का स्पीड क्या है? x. तो 60 बाई x, ये टाइम लगा उसको 60 किलोमीटर ट्रेवल करने में, ये टाइम लगा. प्लस कितना डिस्टेंस बच गया? द रिमेनिंग डिस्टेंस इज 300 माइनस 60. दिस डिस्टेंस ही विल ट्रेवल बाई बस. तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस? y. तो टाइम टेकन बाई Ruhi to travel by bus, this much distance is this. But both the timing, this is time, total time will be 4 hours. See here, time taken by Ruhi to travel this much distance plus this distance, this total timing will be equal to 4 hours. Now simplify it. 60 by x plus 240 upon y is equals to 4. You can divide both sides by 4. If you divide both sides by 4, we get 15 by x plus 60 by y will be equals to 1. This is your equation number first. ये क्या हो गया? This is equation number first. Similarly, in condition 2, in second condition, it is given that if she travels 100 kilometer by train, it means this will be 100 by x plus 300 minus 100 by y. So she will take 10 minutes more than previous time. Previously she was taking 4 hours. उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में पहले 4 घंटा लगता था, अब उसे 10 मिनट अधिक लगेगा. तो किससे 10 मिनट अधिक लगेगा? 4 आवर प्लस, वी कैन राइट लाइक दिस, 4 आवर्स प्लस 10 मिनट. थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये लिखा. तो हियर वी गेट 100 बाई x प्लस 200 अपॉन y. दिस विल बी इक्वल टू, सी हियर स्टूडेंट, दिस इज आवर एंड दिस इज मिनट. तो चेंज दिस मिनट इन आवर. तो दिस विल बिकम 10 upon 60 hour. This will be cancelled. It will be 25 upon 6. It means 100 upon x plus 200 upon y will be equal to 25 by 6. This is our second equation. But
In both side, if you will multiply by 25, so what you get? It will be 4 upon x plus it will be 8 upon y, and this will be 1 upon 6. And multiplying both side by 25, ये 25 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो our first equation is this, second equation is this. Solve these two equation, you get the speed of the trains. Okay, सर मल्टीप्लाई किया कि डिवाइड किया 25 से? आई एम डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइड कर रहे हैं, देखो डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ से डिवाइड करो तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड करो ये 8 हो हाँ, जाएगा, यहाँ वही। से ये 1 हो जाएगा. हम्म। सर ये कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.6 है ना, ऊपर दिख नहीं रहा है देखो, सर ब्लैक बुक पे। सर ऊपर नहीं दिख रहा है। एक्सरसाइज 3.6. Exercise 3.6. This was the last question. Exercise 3.6. This was the last question of exercise 3.6. Now our Only next. 2 questions are there. No, yesterday I explained question number first. Ritu can row down stream 20 kilometer. Have you book? See in your book. बाबा इला ना तो कहते कि बाबा वो 5 घंटा से गेम खेलता है, ऐसे चलाओ तली. माइक ऑफ रखो बेटा, जिसको पूछना हो वही ऑन करो. हेलो, गुड मॉर्निंग. कनेक्ट नहीं हो रहा है. और उसको बात करा रहा. हम एगो कुत्ता गिरी आके केला सो तबे लेला सुनते केहू ना रहला. बस 10 बजे रुक कर. यहाँ देखिए ये लड़का जो फोन कर रहा छोड़िए. Okay, students.
नाउ सर सेकंड कंडीशन समझ में नहीं आया। ये see here, Yes, sir. see here, in second condition its question says that कि Excuse me, if she sir. if she travels 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, 100 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब है कि उसको टाइम कितना लगेगा, 100/x डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ट्रेन से ट्रेवल करने का ये समय हो गया। तो जो बच गया डिस्टेंस 300 में से 300 माइनस 100, ये वो बस से ट्रेवल करे तो उसको कितना टाइम लगेगा, 200/y। और ये टोटल टाइम गिवन है सेकंड कंडीशन में कि पहले जो समय लगा है उससे 10 मिनट अधिक लगेगा। तो 10 पहले 4 घंटा लगा था, पहले कंडीशन में कितना समय लगा था, 4 घंटा। अभी कितना समय लगेगा, 4 + 10 मिनट। आई हैव रिटन हियर 4 hours + 10 मिनट। Oh, if you change this minute into hour, we get 25/6. 6 4 या 24 + 1 25/6 और दोनों तरफ डिवाइड कर दिए। अंडरस्टूड? आया समझ में? सर सर डिवाइड सर क्वेश्चन में 21 सेकंड दिया होगा ना कि अगर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन में ही दिया होगा ना ये चीज कि अगर जो सेकंड केस है उसमें 10 मिनट ज्यादा टाइम लगा है। लिखा है दोनों ना, केसेस के बारे में उसमें लिखा हुआ है, बुक है तुम्हारे पास, बुक है अभी? नो Have सर you आई हैवंट book? बुक्स। Have you book? नो सर आई हैव ओनली RS Agarwal, not the NCERT. Means this is a question of NCERT, and search if maybe this question will be in RS Agarwal. So in question it is given that, listen me, in second condition it is given that कि she takes 10 minutes longer. In she takes 10 minutes longer means second condition में कह रहा है कि पहले जो 4 घंटा लगा था अब उसको 10 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके ओके सर। और किसे डिवीजन में क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन डिवाइड? सर लास्ट no लाइन problem. 4/x जो है। यहाँ देखो, ये कुछ मत करो, Yes, तुम sir, इसी को sir. सेकंड इक्वेशन लिख लो। अगर तुम्हें डिवाइड में प्रॉब्लम हो रही है तो राइट हियर सेकंड इक्वेशन। यहां भी डिवाइड में प्रॉब्लम हो रहा है, राइट हियर फर्स्ट इक्वेशन, नो प्रॉब्लम। 25 4 100 होता है। यहाँ देखो ये 25 है ना, यहाँ 100 200 है, ये 100 है। these all are divisible by 25, that's why I am dividing in both side। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ डिवाइड कर दिया मैंने। 25 से इसको डिवाइड किया तो 4 हो गया, 25 से इसको डिवाइड किया तो 8 हो गया, 25 से इसको डिवाइड किया तो 1 हो गया। छोटा हो गया, नंबर हमारा छोटा हो गया। अगर नहीं करना चाहते हैं हम, हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो वी विल टेक here equation first and here equation second and proceed. Okay, ओके सर, थैंक यू। now exercise 3.7। आपने 25 से multiply- हाँ बोलो क्या है? सर आपने 25 से मल्टीप्लाई किया है, वो तो फ्रैक्शन में है, 25/6 है ना? डिवाइड किया मैंने, डिवाइड किया है बोथ तो साइड सिर्फ को। 25 से किया है। हाँ इक्वल के इधर है ना तो डिवाइड हो जाएगा। 25 ऊपर 25/6 है ना? हाँ तो हाँ। 6 तो रह ही जाएगा। इक्वेशन का ठीक रूल है। है कि दोनों तरफ हम सेम नंबर से डिवाइड कर यस सर, सकते हैं। समझ में आ गया। 6 तो रह ही गया, 6 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 अपनी जगह पे है। ओके, नाउ सी हियर एक्सरसाइज 3.7, इट इज रिटन ऑप्शनल बट दिस इज अ वेरी ओल्ड एडिशन ऑफ बुक। ये अब रिवाइज नहीं हो रहा है। दिस क्वेश्चंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। अभी के समय में इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 4 नंबर में, इसलिए इसको भी करना है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, very less time is there. Now exercise 3.7, exercise 3.7, question number first. The ages of two friends Ani and Biju differ by 3 years. Ani's father Dharam is twice as old as Ani and Biju is twice as old as his sister Kathy.
The ages of Kathy and Dharma differ by 30 years. Find the ages of Ani and Bizu. So we'll take here late the ages of Ani and Bizu. Let the ages of Ani and Bizu is respectively X and Y years. Let the ages of Ani and Bizus are respectively X years and Y years. आप बता See देखा here. हो सर जी So Ani's father Dharma is twice as old as Ani. So what will be the age of Dharma? Dharma's age will be equal to twice of Ani. And Kathy's age will be, here it is given that कि Bizu is twice as old as his sister Kathy. Bizu का एज अपने सिस्टर कैथी का दुगना है, तो कैथी का एज उसका आधा होगा years. See here, Dharam's present age is 2x years and Kathy's present age is y by 2 years. Now condition first. In first condition, it is given that ages of two friends Ani and Bizu differ by 3 years. It means Ani's age is x minus y is equals to 3. This is condition number first. And in condition second, the ages of Kathy and Dharma differ by 30 years. So Dharma's age is 2x minus Kathy's age is y by 2. This will be equal to 30. If you take LCM here, so what we get? Yeah, multiply both sides by 2. So we get 4x minus y is equals to 60. This is equation number second. See students here, यहाँ थोड़ा सा समझना है, देखो इस क्वेश्चन को. दो फ्रेंड है अनी एंड बीजू, इनके एज का डिफरेंस है 3. अनी के फादर का नाम धर्म है, जिसका एज अनी के एज का दुगना है. अनी की बहन है कैथी, जिसमें गिवन है कि बीजू की बहन है कैथी एंड बीजू's एज इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी. बीजू का एज जो वाई है वो कैथी के एज का दुगना है. इसका मतलब कैथी का एज y by 2 years. According to first condition, the difference of Ani's and Bizu's age is 3. So x minus y is equals to 3. And condition second, the difference of Dharam's and Kathy's age is 30 years. So it will be 2x minus y by 2 equals to 30. Multiply both sides by 2 because here in denominator is 2. When we multiply it, 4x minus y equals to 60. We are getting two equations. Solve these two equations by any method, algebraic method. You get the value of x and y. That will be your answer. Okay. If any problem, you can ask. Sir, first case is not understand. In first condition, it is given that the difference of Ani's and Bizu's age is 3 years. अनि और बीजू के एज का डिफरेंस 3 है. इसका मतलब एक में से दूसरे के एज को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा. तो अनि को हमने बड़ा मान लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 3. अब अनि को क्यों बड़ा माना? क्योंकि यहाँ बीजू के बहन है उसकी, और यहाँ अनि के फादर है, तो इनके एज का डिफरेंस अगर 30 गिवन है, इसका मतलब धर्म का एज बड़ा होगा, इसीलिए अनि को भी हम बड़ा मान लिए बीजू के. तो x माइनस वाई इक्वल टू 3. फर्स्ट कंडीशन इज गिवन. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उन दोनों के एज का डिफरेंस 3 है और धर्म और कैथी के एज का डिफरेंस 30 है. दो इक्वेशन बन गया. Solve this question. Okay, less than 1 minute is there. Okay, so today our class is going to be stop. Try yourself some questions. Sir,
हाँ बोलो. Sir, Yes, yes. we can also solve this question in by elimination method. Elimination. See students, elimination is the easiest way. So if method is not given, you always follow elimination method. Okay. अगर sir. आपको नहीं दिया हुआ है, सिंपली देखो, अगर y कटा दो तो 4x